Hello everyone and welcome to DNA Education. In this session we will begin our new chapter, that is sources of energy, and the topic for this session is conventional sources of energy. First of all, what is a source of energy? Source of energy is something which can release energy which we can put into different uses. For example, we have different types of energies like mechanical energy, electrical energy, light energy, hydro energy, and many more. As we know that the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form of energy to the other. That means कि हम एक energy के फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, और ये जो एनर्जी होती है ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम फ्यूल भी कहते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और अ गुड फ्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम या मास दो फ्यूल्स को लेते हैं तो उसी क्वांटिटी में जो फ्यूल ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो एक गुड फ्यूल माना जाएगा. Second is, a good source of energy should be easily available. It should be cheap, or we can say economical. That is, it should not be very much costly. Second, it should be easy to store and transport. अगर कोई energy source ऐसा है जिसे store करना या transport करना मुश्किल है तो ultimately वो whole setup की cost को बढ़ाएगा, wastage को भी बढ़ाएगा, and that won't be a good source of energy. Lastly, it should produce less waste. एक good source ऑफ एनर्जी ज़्यादातर अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है फ्यूल में, बट एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी अपना मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बट अगर वो गुड नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट करता है. तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी कम वेस्ट जनरेट करता है वो एक गुड या आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. इन इंडिया द हाइएस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल. Coal is used in maximum households and industries in India for the generation of energy or for the generation of electricity, or can be used as a fuel, because India में एक large rural population है जहाँ पर coal ही fuel की तरह use होता है. Now we have to study about the conventional sources of energy. Conventional term का meaning होता है something traditional या जो एक बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, and most of the conventional sources of energy उतना ज़्यादा amount of heat energy या फिर energy release नहीं करते हैं जितना non-conventional sources of energy. Also if we compare conventional with non-conventional sources of energy तो ये sources ज़्यादा amount of waste generate करते हैं with less energy generation. First type of conventional energy source is fossil fuel. Now we know that fossils are the dead remains of plants and animals. For example, जो भी plants and animals millions of years पहले dead हो जाते हैं वो soil की rocks की layers में bury हो जाते हैं, and under great heat and great pressure gradually वो decompose होके और fuel में convert हो जाते हैं, जैसे कि coal which is solid, petroleum which is liquid, and even some gaseous fuel जिसे natural gas कहते हैं. यही coal, petroleum and natural gas को combine करके हम fossil fuels कहते हैं, because these are the fuels which are produced from the fossil remains of plants and animals. Fossil fuels हम LPGs में यूज़ करते हैं जो घर पे liquefied petroleum gas जो stoves में यूज़ होती है, vehicles में as fuel यूज़ होती है natural gas, और ये electricity generation में भी यूज़ होते हैं. But fossil fuels के कई सारे drawbacks भी हैं. For example, these are the exhaustible sources of energy, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉसिल्स हैं जो कि कंजम्पशन के साथ साथ खत्म हो जाते हैं. ऑल्दो नए फॉसिल्स बन सकते हैं बट दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल. ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में
या फिर उनके बर्निंग में, यानी कि जब भी हम कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एट्सेट्रा। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती हैं। इसी के साथ साथ इनको बर्न करने से स्मोक रिलीज होता है, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं। यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जब रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होते हैं, देन दे कॉज एसिड रेन। सो वी सी दैट फॉसिल फ्यूल्स ऑल्दो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, बट दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स. Next, moving on to thermal power plants. Thermal means heat and power plants means plants that generate electricity. So these are the electricity generation plants जहाँ पर fossil fuels को burn करके heat generate होती है और उस heat को finally electricity में convert किया जाता है. Now there is a very simple model to understand कि कैसे heat को हम electricity में convert कर सकते हैं. For example, if we take a pressure cooker और उसमें हमने वाटर लिया है, जब हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ये स्टीम एक पाइप से सपोज एक टरबाइन पर जाते हैं और स्टीम इस टरबाइन के ब्लेड्स पर जब प्रेशर डालेगी तो टरबाइन विल रोटेट. जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वी कॉल इट एज मैकेनिकल एनर्जी. ये टरबाइन फर्दर कनेक्टेड है एक डायनामो से, जो एक तरीके का जनरेटर है. तो डायनामो विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इन द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर एज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है आगे घरों तक या इंडस्ट्रीज तक, due to which finally we will get electricity. So this is how a thermal power plant works. Now next is hydro power plant. As the name suggests, hydro means water. That means in hydro power plants electricity is generated through water. सपोज एक हाई रेज डैम है, यानी कि एक हायर रेज्ड एरिया पर, एक एलिवेटेड एरिया पर हमने एक रिजर्वॉयर या एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है. उसमें ओवर टाइम हम रिवर्स का या फिर रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं जिससे वो डैम भर जाए. नाउ इस डैम से जब हम वाटर को लो लाइंग एरियाज पर फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली ग्रेविटी से फ्लो करेगा डाउनवर्ड. और यहाँ पर हमने एक टरबाइन रखा है, तो वाटर जब फास्ट मोशन में इस टरबाइन पर आएगा तो द टरबाइन विल रोटेट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर. और ये टरबाइन यहाँ पर जनरेटर से कनेक्टेड है जो इस टरबाइन के मोशन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर लाइंस. सो दिस इज हाउ अ हाइड्रो पावर प्लांट वर्क्स. और जो वाटर यहाँ से आया वो फर्दर हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स एटसेट्रा. नाउ there are two very famous dams in India like Tehri Dam, which is constructed on river Ganga, and Sardar Sarovar Dam, which is constructed on river Narmada. Construction of dams, especially these two dams, इनको बहुत ही opposition मिला by general public. ऑपोजिशन के बहुत ही मेजर कॉजेज हैं, जैसे कि डैम्स से जब वाटर आता है लो लाइंग एरियाज में तो वहाँ पर वो फ्लड्स कॉज करता है. दूसरा, डैम से कंस्ट्रक्शन के लिए एक लार्ज एरिया को क्लियर किया जाता है, वहाँ जो भी सेटलमेंट होती है उसे रिमूव किया जाता है. सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स. सेकेंडली, डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन हिली रीजन, यानी सिर्फ एक हिली रीजन या एक रेज्ड एरिया पर ही डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डैम्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बहुत लिमिटेड हैं. नेक्स्ट इज, जब फ्लड्स आते हैं लो लाइंग एरियाज पे तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो सबमर्ज हो जाती है. और जब वेजिटेशन सबमर्ज हो जाती है तो एयर का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया उस वेजिटेशन को रॉट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं और इस रॉटिंग में मीथेन गैस रिलीज होती है लार्जली. ये मीथेन गैस एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फॉर हाइड्रो पावर प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इज बायोमास. एज वी नो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें कई तरीके के फ्यूल्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फायरवुड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड काउडंग एज फ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो इस तरीके के फ्यूल्स जो प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से आ रहे हैं उन्हें हम बायोमास कहते हैं. बायो मीन्स लाइफ एंड मास मीन्स क्वांटिटी. सो बेसिकली बायोमास आर द फ्यूल सोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स.
फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे हम बायोमास से ऑब्टेन्ड फ्यूल्स को बेटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे कि वुड है, वी कैन गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन वुड की बर्निंग में बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है और वो कम क्वांटिटी की हीट प्रोड्यूस करती है। अगर हम वुड को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न करते हैं तो वुड इज कन्वर्टेड इनटू चारकोल। नाउ चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम, डू नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हमने देखा कि कैसे वुड को हम चारकोल में कन्वर्ट करके एक बेटर फ्यूल जनरेट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। अनदर एग्जाम्पल इज काउडंग, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज। दैट इज जब काउडंग, वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, और सीवेज होता है या इसके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उन सभी को अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, तो बायोगैस इज रिलीज्ड। नाउ दिस बायोगैस इज अ हाईली एफिशिएंट फ्यूल बिकॉज काउडंग के कंपैरिजन में बायोगैस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। ऑल्सो काउडंग क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट है या मेजर कंपोनेंट कह सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोगैस, देयरफॉर बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस। नाउ दिस इज अ बेसिक प्लांट, ये एक प्लांट है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, दैट इज यू कैन से बायोगैस प्लांट। नाउ इन दिस देयर इज अ डाइजेस्टर, दिस चेम्बर इज कॉल्ड डाइजेस्टर, और यहाँ पर एक कंपोनेंट है, एक टैंक जिसमें स्लरी प्रिपेयर किया जाता है। स्लरी में काउडंग और बाकी वेस्ट को वाटर के साथ मिक्स करके एक थिन पेस्ट यू कैन से बनाया जाता है विच कैन इजीली फ्लो, इसको हम स्लरी कहते हैं। एंड स्लरी व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इज पास्ड इनटू द डाइजेस्टर, और ये डोम शेप्ड एक गैस टैंक है, और इस डाइजेस्टर में एनाएरोबिक बैक्टीरिया स्लरी में प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं, और उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया कई सारी गैसेस रिलीज करते हैं जो कि इस डोम में स्टोर हो जाती हैं। इसी कॉम्पोजिशन ऑफ गैस को हम बायोगैस कहते हैं, जिसमें से 75% मीथेन गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस भी मिक्स्ड होती हैं, और एक पाइपलाइन से ये गैस हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको हम एज फ्यूल यूज कर सकते हैं, या फिर टर्बाइंस को रोटेट करके अगेन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो बायोगैस होती है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विदाउट स्मोक, जबकि अगर हम डायरेक्टली काउडंग को बर्न करते हैं तो अ लॉट ऑफ स्मोक इज रिलीज्ड। ऑल्सो यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर स्लरी होती है वो एज मेन्योर यूज कर ली जाती है बिकॉज दिस मेन्योर इज हाईली रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी। सो दिस इज अबाउट अ बायोगैस प्लांट. Next is the wind energy. You can see that on earth there are solar radiations which are falling on earth, और इन solar radiations और earth की rotation की वजह से जो air present है earth पर वो uneven heat up होती है, यानी कि earth के कुछ regions heat up हो जाते हैं और कुछ regions में air cool होती है, और इसी heat and cold के difference की वजह से air circulate होती है in the form of winds। जैसे कि हमने पढ़ा था कि when air gets heated up it expands and rises, similarly colder air sinks। तो ये जो rising and sinking of hot and cold air है इसकी वजह से wind currents generate होते हैं earth पर। यही wind currents जो होते हैं जब एक विंडमिल पर पड़ते हैं, ये एक बेसिक डायग्राम है विंडमिल का जिसमें ये ब्लेड्स होते हैं। यूजुअली कोस्टल एरियाज जो इंडिया के हैं वहाँ पर ये विंड फार्म्स जनरेट होते हैं या सेटअप किए जाते हैं। ये विंड फार्म्स में बहुत सारे विंडमिल्स लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जब विंड आती है तो उस विंड के प्रेशर से ये विंडमिल रोटेट करता है। नाउ दिस बिकम्स द मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी अर्लियर टाइम्स में वाटर की लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था, बट नाउ अडेज अगर हम इस विंडमिल को एक जनरेटर से कनेक्ट कर दें, जैसे कि हमने इस केस में देखा
देखा था, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड वी विल बी हार्नेसिंग द विंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउएवर विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एज यू नो कि विंड कभी खत्म नहीं हो सकती, इट इज नेवर एंडिंग एंड हेंस दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल्सो इट इज इको फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा, कोई स्मोक या पॉल्यूशन नहीं हो रहा, सिंपली विंड है और विंड मिल रोटेट कर रहा है, तो इट इज इको फ्रेंडली। हाउएवर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं विंड एनर्जी के ऊपर, जैसे कि द स्पीड ऑफ विंड मस्ट बी एट लीस्ट ग्रेटर देन 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके की हाई विंड स्पीड हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। ऑल्सो बहुत ही लार्ज एक ओपन एरिया चाहिए विंड फार्म्स को सेटअप करने के लिए। सेकेंडली जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है विंड फार्म्स की वो बहुत हाई है। ऑल्सो ये जो विंड मिल के ब्लेड्स हैं ये सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन सभी की तरफ एक्सपोज हैं, जिनकी वजह से ये कोरोड हो सकते हैं। तो विंड फार्म्स या विंड मिल्स की बहुत हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। सो इन टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट session. You can also refer to our book of DNA Education Key Point Science Class 10th. Thank you.